ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خير المرسلين وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين والقاسم محمد. قال الله تبارك وتعالى سبحانه في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صلوات پڑھنے پر سب سے پہلے تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے جو عالم مقرر ہے، اس پروردگار کے لیے جو ہماری رب حیات سے بھی زیادہ قریب ہے. یقیناً پروردگار عالم بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی انسان جتنا اس کی بارگاہ میں توبہ کرے وہ پروردگار بندوں کے گناہوں کو بخشتا چلا جاتا ہے. اور یہ پروردگار کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس نے توبہ کا در اپنے بندوں پر ہمیشہ کھول رکھا ہے. یہ ایک خوبصورت دروازہ ہے جو اپنے بندوں کے لیے اس نے کھول رکھا ہے. کیونکہ اگر یہ در نہیں ہوتا تو فلاح اور کامیابی کسی کے لیے نہیں ہوتی. اس لیے کہ انسان گناہوں کا مجسمہ ہے، اسے ہر لمحہ کچھ نہ کچھ خطائیں ہوتی رہتی ہیں. تو پروردگار کی یہ مہربانی ہے. اسی لیے معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اس ابواب رحمت کی قدردانی کی اور پر اس دروازے سے اس نے فائدہ اٹھایا اور اس نے نجات حاصل کر لی اور پروردگار کا بہترین بندہ بن گیا. اور بدترین ہے وہ شخص جس نے اس ابواب رحمت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنے لیے نجات نہیں حاصل کی. صلوات پڑھ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی موت سے 1 سال پہلے اگر توبہ کرے تو خدا اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ 1 سال بہت ہے، اگر 1 مہینہ پہلے بھی اگر وہ توبہ کرے تو خدا اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ 1 مہینہ بھی بہت ہے، اگر 1 ہفتہ پہلے بھی وہ توبہ کرے تو خدا اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یہ 1 ہفتہ بھی بہت ہے، اگر 1 دن پہلے بھی انسان توبہ کر لے تو خدا اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. صرف اس وقت یہ توبہ قبول نہیں ہوتی کہ جب انسان کے سامنے ملک الموت ظاہر ہو جائے اور اسے یقین ہو چلا ہے کہ اب اس کی روح قبض کرنے والی ہے. جب اس وقت وہ انسان اگر توبہ کرتا ہے تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں کی جاتی ہے. صلوات پڑھ دے پانچویں امام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ہے جو خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے، توبہ کرے، معافی مانگے اور خدا اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ توبہ نصوحہ کرے، یعنی ایسا توبہ کہ جس کے بعد وہ گناہ کو انجام نہیں دے. ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ یا علی مجھے گناہ سرزد ہو گیا ہے. ایک ایسا گناہ جسے برسر ممبر بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ کہتا ہے یا علی مجھے یہ گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھ پر حد جاری کر دیں. تو مولا علی کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے اس وقت تم باعقل باشعور نہیں رہے ہوگے، لہٰذا تم پر حد جاری نہیں ہوتا، تم گھر چلے جاؤ. دوسرے دن وہ شخص پھر آیا، پھر کہتا ہے یا علی مجھ سے یہ گناہ ضرور ہوا ہے،
आप मुझ पर हद जारी कर दे। तो अली कहते हैं कि ऐसा है, हो सकता है कि उस वक्त तुम अपने होश व हवास में नहीं रहे होगे, इसलिए तुम पर यह हद जारी नहीं होता। फिर वो शख्स चला गया। फिर वो शख्स तीसरे दिन आता है, फिर कहता है या अली मुझसे ये गुनाह सरजद हुआ है, आप मुझ पर हद जारी कर दें। तो अली फरमाते हैं कि हो सकता है तुम उस वक्त गुस्से के आलम में हो, इसलिए तुमसे ये गुनाह हो गया हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर हद जारी नहीं है। वो शख्स चला गया। चौथे दिन फिर वो आया और फिर उसने वही जुमला दोहराया। तो अली कहते हैं कि देखो ऐसा है कि इस गुनाह की सज़ा में, इस गुनाह की तो जो हद है वो 3 तरह की हमारे नबी ने बताया है। वो कहता है या अली इरशाद फरमाएं। तो अली कहते हैं कि सबसे पहली जो हद है वो ये है कि तुम्हारे हाथ पैर काट कर तुम्हें पहाड़ से नीचे गिरा दिया जाए। दूसरी हद ये है कि तुम्हारे सरो तन में जुदाई कर दी जाए। और तीसरी हद ये कि तुम्हें आग में जला दिया जाए। तो वो शख्स कहता है या अली इसमें सबसे सख्त, सबसे अजियतनाक कौन है? तो अली कहते हैं कि आग में जलाया जाना सबसे अजियतनाक है। तो वो शख्स कहता है या अली मैं आग में जलने को तैयार हूँ, आप मुझे आग में जलाकर मुझे इससे छुटकारा दिलवाएं। तो अली कहते हैं ठीक है, फिर तैयार हो जाओ आग में जलने के लिए। उसी वक्त आग का एक गड्ढा खोदा गया, या आप तंदूर कह सकते हैं, उसमें वो आग रोशन की गई। वो शख्स उठा, उसने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद खुदा से दुआ की कि परवरदिगार मैंने तेरी नाफरमानी की है, मैंने गुनाह किया है, मैं तेरे जानशीनों के पास इसके इजाले के लिए आया हूँ, खुदाया मेरे ऊपर रहम कर और तू मुझे जहन्नम के अजाब से, जहन्नम की आग से मुझे बचा ले। ये कहकर वो शख्स उस तनूर में कूद जाता है और जैसे वो कूदता आग के शोले भड़क उठते हैं। वहाँ मौजूद तमाम लोग गिरिया करने लगते या अली एक जिंदा शख्स आग में कूद गया, उसका क्या हुआ होगा? जैसे तो फौरन मौला अली खड़े होते हैं और कहते हैं शख्स तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारे इस अमल से कितने लोग गिरिया कुनाह हैं, कितने लोग गिरिया कर रहे हैं। फिर उस शख्स को बाहर जब तनूर से निकाला गया तो मौला अली फरमाते हैं कि देखो कोई भी शख्स, कोई भी इंसान अगर अली का चाहने वाला हो, अल्लाह का फरमाबरदार हो, नबी का चाहने वाला हो और उससे कोई गुनाह अगर हो जाता है, अगर वो तौबा कर ले तो खुदा उसे माफ़ कर देता है। लेकिन अगर वो माफ़ी से पहले अगर वो मर जाए तो आलम बरज़ख में वो इतनी देर ही रहता है कि जितनी देर उसका हिसाब किताब नहीं हो जाता। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम एक बेहतरीन खूबसूरत मिसाल पेश करते हैं। वो कहते हैं कि मान लो कि दरिया के सफ़र में 2 कश्ती जा रही है। एक कश्ती जिसमें साजो सामान लदा हुआ है और एक कश्ती जो कि बिल्कुल खाली है, यानी एक कश्ती जिसमें सामान है, तिजारत का माल रखा हुआ, और एक कश्ती जो बिल्कुल खाली है। तो जो कस्टम हाउस होते हैं, जो बंदरगाह होते हैं, जब ये कश्ती वहाँ पे पहुँचती, जो टैक्स वसूलते हैं, तो जब ये कश्ती वहाँ कस्टम हाउस में पहुँचेगी तो ये जो कश्ती वहाँ जब पहुँचेगी तो टाइम किसको लगेगा अपना हिसाब किताब देने में? जिसके ऊपर माल लदा हुआ है, जिसके ऊपर माल लदा हुआ है। और जो कश्ती खाली है उसे वक्त नहीं लगेगा, वो फ़ौरन वहाँ से निकल जाएगी। तो अली फरमाते हैं कि यही तरीक़ा होना चाहिए। जो इंसान इस दुनिया में अपने गुनाह का कफ़ारा अदा कर देता है, इसी दुनिया में माफ़ी मांग लेता है, इसी दुनिया में अपनी खताओं का एतराफ़ कर लेता है, तो आखिरत में उससे हिसाब किताब नहीं किया जाएगा, उसे सीधा जन्नत में भेज दिया जाएगा। सलवात पढ़ दें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फिर फरमाते हैं कि गुनाहों के कफ़ारे के लिए, इसमें कमी लाने के लिए तुम्हें चाहिए कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करो। जितनी ज़्यादा इबादतें करते चले जाओगे, जितना शौक़ इबादत पैदा होता चला जाएगा, उतने ज़्यादा तुम्हारे गुनाह कम होते चले जाएंगे। लेकिन ये बात भी अपने जहनों में महफूज रखो कि इबादत की बिना पर तकब्बुर नहीं करना कि हम बहुत ज़्यादा इबादत गुजार हैं। कि एक शख्स था किसी नबी के ज़माने में, वो इतना इबादत गुजार था, ऐसा इबादत गुजार था, ऐसा इबादत गुजार कि उस शख्स के साथ साथ अब्र रहमत चला करती थी। यानी इतनी ज़्यादा वो इबादतें करता था, इबादत की इस बुलंदी पे पहुंच चुका था कि अब्र रहमत उसके ऊपर साया किए थी। यानी जहाँ जहाँ वो शख्स बैठता था बादल उस पर साया फिगन रहता था, हर टाइम उसके ऊपर साया किए रहता था।
लेकिन उसी माशरे में एक शख्स रहता था जो कि बहुत ही ज़्यादा गुनहगार, बहुत ही बदतरीन था। इसी तरह महफिल सजी थी, वो आबिद परहेजगार मुत्तकी जो था वो भी वहाँ बैठा था और अबे रहमत उसके ऊपर साया फिगन थी। उसी समय वो जो गुनहगार शख्स था वो उधर से गुजरा, उसने उसे देखा और देखने के बाद अपने दिल में कहता है कि ऐ काश मैं भी इसके जैसा होता। कितना खुश नसीब है ये इंसान, कितना फर्माबरदार है अपने परवरदिगार का, कितना अच्छा है, कितना खुश अखलाक है ये शख्स, कितना बाबरकत है ये शख्स कि अल्लाह इतना पसंद है कि उसके ऊपर साए रहमत किया हुआ है उसने, अब उसके साथ साथ चल रहा है। कितना अच्छा ये शख्स, काश इसकी तरह मैंने भी अपना वक्त अल्लाह की बारगाह में गुजारा होता, इबादतों में गुजारा होता, तो आज इसकी जगह मैं होता और मेरे ऊपर भी ये साए रहमत होती। जैसे उसने ये जुमला अपने दिल में ये ख्याल किया, शर्मिंदगी महसूस की, तभी लोगों ने ये देखा कि वो अबे रहमत, वो जो साया बादल, जो साया फिगन था, उस आबिद के सर से हटकर उस गुनहगार के सर पे आ गया। अब जैसे ही उसने ये माजरा देखा, फौरन खड़ा हो गया और तकब्बुर में कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, माशरे का सबसे बदतरीन इंसान, सबसे बदतरीन इंसान जिसकी तरफ लोग देखना भी पसंद नहीं करते, वो मेरे मुकाबले में इस तरह खड़ा है कि साया भी उसकी तरफ चला गया मुझे छोड़कर। ये हम नहीं, कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। अली कहते हैं कि हमेशा याद रखो, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, लेकिन तुम अच्छे हो लेकिन लोग तुम्हें बुरा समझते हो, इस बात से 1000 गुना बेहतर है कि तुम बुरे हो और माशरा तुम्हें अच्छा समझता हो। सलवात पढ़ दे तो अली ने फरमाया ये वही लोग हैं जो अपनी इबादतों की बिना पर नाज करते हैं, तकब्बुर करते हैं और समझते हैं कि मैं सबसे बड़ा दाना हूँ, जबकि हमारा परवरदिगार सबसे बड़ा दाना और सबसे बड़ा हकीम है, सबसे ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला है, सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाला है। और यही तौबा की बरकत है, ये तौबा की तौफीक होना भी अल्लाह की एक नेमत है। ये तौबा की ही तौफीक थी कि इंसान बदतरीन से बेहतरीन हो जाता है, और ये तौबा ही की बरकत थी जिसने हुर को हुर से हुर अलैहिस्सलाम बनाया, हुर को हुर से हुर अलैहिस्सलाम बना दिया था। कल तक हुर के पास पूरी दुनिया थी, पूरी खुदाई थी, ताकत थी, तलवार थे, हथियार थे, पैसा था, माले दुनिया सब कुछ था, लेकिन हुर के पास जन्नत नहीं थी, आखिरत नहीं थी, हुसैन नहीं थे। लेकिन ये क्या देखा गया कि एक शब में हुर की फिक्र इतनी बदल गई कि कब बदली हुर की फिक्र कि जब जनाब इमाम हुसैन का उसने रास्ता रोका तो लेजामे फरस पर हाथ डाला, जब तो इमाम हुसैन ने कहा कि हुर तेरी माँ तेरे गम में बैठे, तो हुर ने कहा कि ए हुसैन, अगर पूरे इराक में अगर ये बात किसी और ने कही होती तो मैं उसको ये जुमला पलटा देता, लेकिन मैं क्या करूं कि आपकी माँ फातिमा है और मैं आपको ये जुमला पलटा नहीं सकता। क्या हुसैन नहीं जानते थे कि हुर पलट कर फिर मेरी तरफ आ जाएगा? तो हुसैन ने क्यों कहा ये हुर से? क्योंकि हुसैन जहनों पे हुक्मरानी करना जानते हैं, हुसैन दिलों पे राज करते हैं। हुसैन ने ये जुमला इसलिए कहा था ताकि हुर सोचे और फिक्र करे, देखे कि मैं कौन हूँ और हुर कौन है और वो क्या खताएं करता चला जा रहा है। मौलाना आरिफ काज़मी का एक बहुत ही हसास जुमला है कि क्या हम उस जहन्नम में रहना पसंद करेंगे जिसमें वो रहता हो जिसने फातिमा को तमाचे मारे? क्या हम उस जहन्नम में जाना पसंद करेंगे जिसमें वो रहता हो जिसने सकीना को तमाचे मारे? क्या हम उस जहन्नम में जाना पसंद करेंगे जिसमें वो रहता हो जिसने ज़ैनब की रज़ाएं छीनी? क्या हम उस जहन्नम में जाना पसंद करेंगे जिसमें वो रहता हो जिसने हुसैन को शहीद किया? यकीनन नहीं जाना पसंद करेंगे। तो वक्त रहते इमाम फरमाते हैं कि वक्त रहते तौबा करो, और ये वक्त का फ़ायदा हुर ने कैसे उठाया? इस शबे आशूर हुसैन को घेर कर करबला तो लाया हुर, लेकिन शबे आशूर जब नमदार हुई है तो हुर के अंदर एक अजीब कैफियत है, एक अजीब बेचैनी है।
हुर का गुलाम खाना लेकर आता है और कहता है आका बहुत बेचैनी के आलम में देख रहा हूँ आपको, जब से ये शाम ढली है मैं देख रहा हूँ आप बहुत बेचैन हैं, खाना खा लें। तो हुर कहते हैं कि मुझे भूख नहीं लगी, ये खाना ले जाओ। फिर हुर का बेटा आता है और कहता है बाबा बाबा इतने बेचैन क्यों हैं? तो हुर कहते हैं मेरे लाल मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान पा रहा हूँ। तो हुर का बेटा कहता है बाबा बाबा की फिर क्या फैसला किया है? तो जनाब हुर कहते हैं कि पुश्ते खैमा से मुझे किसी बीवी के रोने की आवाज़ आती है, मैं ये चाहता हूँ कि ये जहन्नम को छोड़कर मैं जहन्नम को छोड़कर जन्नत की तरफ चला जाऊँ। एक मर्तबा अपने उसका हुर का बेटा कहता है बाबा जब जन्नत में जाने का फैसला कर ही लिया है तो बाबा तन्हा नहीं जाना, बाबा मुझे भी लेते चले जाओ। एक मर्तबा हुर ने गुलाम को आवाज़ दी और कहा ए गुलाम जाओ, तुम्हें आज से मैंने आज़ाद कर दिया। हुर का गुलाम कहता है वाह मौला, जब तक जहन्नम में थे तब तक साथ रखा और जब जन्नत की तरफ चले तो मुझे आज़ाद कर दिया। मौला ये नहीं हो सकता, मुझे भी अपने साथ लेकर चले। एक मर्तबा हुर ने एक छोटा सा लश्कर तैयार किया, पीछे हुर का गुलाम था, आगे हुर का बेटा, दरमियान में हुर किस तरह चले कि बेटे से कहा मेरे लाल मेरे हाथों को बांध दो। इन हाथों ने लिजामे फरस पे हाथ डाला था, हाथों को मिसले गुलाम के बंधवा लिया, आंखों पे पट्टी बांध ली। अब हुर का ये काफिला हुसैन की जानिब चला। जब ये काफिला चलने लगा था तो हुर ने अपने बेटे से कहा है मेरे लाल आगे आगे क्या होता रहता है मुझे बताते रहना, हमें देखकर कौन हमारी तरफ बढ़ता है हमें बताते रहना। एक मर्तबा जब ये काफिला आगे बढ़ा ना तो हुर के बेटे ने कहा अल्लाहू अकबर। हुर ने कहा बेटा क्या हुआ? हुर का बेटा कहता है बाबा अली अकबर आ रहे हैं। हुर फिर ठहरे, फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर उनके बेटे ने कहा अल्लाहू अकबर। फिर हुर ने कहा बेटा अब क्या हुआ? हुर का बेटा कहता है बाबा अब्बास इब्ने अली आ रहे हैं। फिर हुर आगे बढ़े, अब जो हुर आगे बढ़े ना तो हुर का बेटा कहता है अल्लाहू अकबर। हुर ने कहा लाल अब क्या हुआ? हुर का बेटा कहता है बाबा हुसैन इब्ने अली आ रहे हैं। अब हुर के कदमों ने साथ छोड़ दिया, हुर के कदमों में ये ताकत नहीं रही कि वो आगे बढ़ सके। हुर के कदम वहीं ठहर गए, खाक पे गिर गया, बंधे हुए हाथ जोड़े, जोड़ कर कहता है मौला मौला मैं जंग करने नहीं आया, मौला मुझे माफ कर दो, मैं ही यहाँ आपको घेर कर लाया हूँ। एक मर्तबा हुसैन ने हुर को उठाया, उठाने के बाद सीने से लगाया, सीने से लगा कर कहते हैं हुर बड़ा अजीब मामला है, मौला क्या हुआ? हुर से कहते हैं हुसैन है हुर जब तू हमारा दुश्मन बनकर आया था ना हमने तेरे जानवरों को भी पानी पिलाया था, मगर है हुर जब तू दोस्त बनकर आया है ना मेरे पास एक कतरा आप नहीं है। हुर कहता है मौला ये पानी का दाना तो मुझे नहीं दे। एक मर्तबा हुर खैमे हुसैनी के करीब आया, बच्चों की सदाएं सुनी, खैमे से सदा आ रही थी अल्लाह दाश बाबा प्यास मारे डालती है। अभी भी एक मर्तबा हुर ने अपने बेटे को आगे किया, आगे करने के बाद कहते मेरे लाल तुम मुझे मरता हुआ देख कर कहीं हुसैन को छोड़ न जाओ, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि पहले तुम अपनी जान गवाओ। हुर का बेटा तैयार हुआ, तैयार होने के बाद मैदान में गया, जंग लड़ते लड़ते एक मर्तबा उसने सदा दी या बताओ हदरिकनी। इस सदा का गूंजना था कि एक मर्तबा हुर दौड़ा, लाशें पे सर पे जब आया तो क्या देखा? उससे पहले हुसैन आ गए, बेटे का लाश अपनी आगोश में रखा। एक मर्तबा हुर
کہتے ہیں حسین میں نے تیرے نبی کے شکل والے اکبر کو مار ڈالا، اے حسین میں نے تیرے 18 سال والے علی اکبر کو مار ڈالا۔ حسین صدا دیتے جاتے ہیں این علی اکبر، این علی اکبر۔ مجھے نہیں پتا حسین لاش علی اکبر پر کیسے پہنچے۔ جب حسین پہنچے نا تو کیا دیکھا کہ کھڑیل جوان ہے، گرم ریتی پہ ایک ہاتھ سینے پر ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، جوان کے برابر میں بیٹھے۔ کہا علی اکبر سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ علی اکبر کہتے بابا سینے پہ بڑا درد ہو رہا ہے، بابا یہ نیزے کی علی نکال دو۔ حسین نے علی اکبر کے ہاتھ کو ہٹایا، ایک مرتبہ نیزے کی علی کو دیکھا، دیکھ کر کہتے ہیں علی اکبر تیرا قاتل بڑا بے رحم تھا، جس نے نیزہ مارا نہیں بلکہ تیرے سینے میں نیزے کی علی توڑ ڈالی۔ ایک مرتبہ حسین دو زانو ہو کر بیٹھے، ایک ہاتھ زخم علی اکبر میں ڈالا، ایک ہاتھ زمین پہ سہارا لیا، ایک مرتبہ آسماں کا رخ کر کے کہتے ہیں پروردگار گواہ رہنا میں نے تیرے اسلام پر اسے قربان کر دیا جو مجھے سب سے عزیز تھا۔ ہاں بیویوں اب جو یا علی مدد کہہ کر حسین نے نیزہ کو کھینچا، صرف نیزہ باہر نہیں آیا، علی اکبر کا جگر آگے کربلا کو زلزلے کے جھٹکے لگے، صداؤں میں صدا گونجی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حبیبیوں ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں بابا جب میرے لاشے کو خیمے میں لے جانا نا، بابا اتنا کرنا میرے سینے کو چھپا دینا، بابا اماں مر جائے گی، بابا میری بہنیں مر جائے گی۔ حبیبیوں ایک مرتبہ عباس کو بلایا، بھیا عباس میری مدد کرو، مجھ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا، پروردگار کسی باپ کو اتنا مجبور نہیں کرے کہ جوان کا لاشا اٹھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو صدا دے رہا تھا۔ حبیبیوں اس کے بعد حر کے بیٹے کی میت خیمے میں آ گئی، اس کے بعد حر تیار ہوا، بیویوں سے معافی مانگی، معافی مانگنے کے بعد جب حر میدان میں گیا ہے نا تو ایک مرتبہ لشکر والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا باغی ہے، اسے گھیر کے مارو، جتنا ہو سکے اسے مل کے مارو۔ ایک مرتبہ سب حر پر ٹوٹ پڑے، جب حر تاب نہ لا سکے نا تو ایک مرتبہ صدا بلند کی یا قائد رکنی، اس صدا جیسے یہ صدا حسین کے کانوں میں آئی، حسین نے آواز دی بھیا عباس ہمارا مہمان گھوڑے سے گر گیا۔ حسین دوڑے، حر کا لاشا اٹھایا، اپنی آغوش میں رکھا، اپنے آقا کے دامن سے ایک رومال اٹھائی اور حر کی پیشانی پر باندھا، حر کے آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ حر کہتے ہیں مولا مجھے یاد آتا ہے کہ جب آپ گھوڑے سے گریں گے مولا کون سنبھالنے والا ہوگا، آپ کی پیشانی سے کون خون صاف کرے گا۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے میرے بھائی حر تو غم نہیں کرے، اس سے پہلے کہ حسین زمین پر آئے، حسین کی ماں فاطمہ جنت البقیع